Hi guys, I am little late to record this podcast, but yeah, nothing is late. Everything is on time. If it's happening right now, then this is the perfect time to do this. There is no better time than this. Anyway, today was little slow, you can say, and I felt little indecisive. Happens sometimes, and I always have massive expectations out of me. I expect something big, profound, something unique out of me. And this week I went to uh, look around. Randomly, spontaneously, I went and checked this gym out. It's not a new gym, you can say, but yeah, it's pretty. It's not that old as well. I went to this gym. It's a pretty fancy gym, massive big gym. It has many machines. They were saying that it has 7 to 8 different machines for each body part, and that was like I was mind blown by that. And I was looking around, and I felt inspired in that space, and I'm very intuitive about these things. If I feel inspired and happy and excited about when I'm in a certain place, I take it as a sign that this is where I would love to be, and this is where life wants me to come again, and this is where I'm going to grow and do better. So this gym gave me that vibe after really very long, and I went through mixed weird emotions. I can't even explain why I felt how I felt. I was with a friend that time, but then I quickly asked that friend to drop me home. But when I came back home, I went into my room and I felt emotional. And I kept wondering, that like what happened to me? Like why would I feel emotional? And then I realized that my father used to take me to different new places. He used to love doing that. He used to encourage me to work hard in life and to train in the best spaces and best places. When I was in class ninth, that time my dad had made me join this very desi kind of local gym in Mira Road. It used to be called Halo HALO Fitness something gymnasium, something like that. एंड 200 रुपये फ़ीस थी उसकी. एंड वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग करनी पहली बार शुरू करी थी. एंड वहाँ पे ट्रेनिंग करते करते कुछ 6 महीने ही होंगे, 6-7 महीने. देन वी हैड टू शिफ्ट, बट वी वर शिफ्टिंग इन लाइक एक लेन छोड़ के उसी एरिया में हम शिफ्ट हो रहे थे. तो मेरे पापा ने मुझे एक सरप्राइज़ टाइप दिया एंड ही टुक मी टू दिस न्यू जिम, जो उस एरिया का थोड़ा सा अप मार्केट फील का जिम था. एंड उसका नाम था विशाल बॉडी जोन. एंड उस समय मुझे अभी भी याद है, मैं मेरे पापा मुझे जिम में लेके गए. एंड मैं वहाँ पर पूरा एक्साइटेड हो गया, एकदम खुशी से वहाँ घूम रहा था अंदर. जिम की खुशबू मुझे अभी तक पता है, क्योंकि वो ब्रांड न्यू जिम था. मशीन की खुशबू, और उन्होंने पता नहीं कोई तो एक रूम फ्रेगरेंस टाइप कुछ स्प्रे किया हुआ था. एंड बहुत एक्साइटेड था. मेरे पापा दूर खड़े थे रिसेप्शन के पास में, और मुझे अंदर अकेले जाने दिया था उन्होंने. एंड ही वॉज स्माइलिंग एट मी, लुकिंग एट मी. आई वॉज लाइक पपी, हैप्पी एंड एक्साइटेड. एंड देन माई फादर, द मोमेंट आई केम बैक एंड माई डैड आस्क्ड मी कैसा लगा जिम. मैंने बोला पापा बहुत अच्छा जिम है यार, क्या अच्छा जिम है, अमेजिंग. वो मशीन तो मैंने कभी देखी ही नहीं, और वो वाली मशीन से वो होता है. और पापा वो जो मशीन है ना, वो दिखने में इतनी अजीब है, बट वो एक्चुअली में चेस्ट के लिए है. मैं आपको दिखाऊँ इससे क्या होगा. एंड माई डैड वॉज लाइक लाफिंग एंड स्माइलिंग. एंड देन ही सेड कि ये आपका नया जिम है, आप कल से यहाँ पर आओगे. एंड देन आई वॉज लाइक jumping and hugging him. So I think anything can trigger such memories. And so coming back to these couple of days ka event, I went to see this gym alone. And I felt like I miss my father again. On this memory led me to that memory, and made me realize how much my father used to encourage me to always how much the space matters. And he used to always talk about
अच्छी जगहों में अच्छी एनर्जी होती है, वहाँ पे एक इंसान की ग्रोथ होती है। अच्छी जगह पे ट्रेनिंग करने से इंसान का वेल बीइंग हर तरीके से ग्रो होता है। इंसान इनसाइड एंड आउटसाइड तो होता ही है। एंड अच्छे लोग आते हैं अच्छी जगहों पे, ऐसी बातें मेरे पापा करते थे। एंड दैट इज़ लाइक आई जस्ट फेल्ट दैट my father used to do a lot of things for me, things that I can't even explain. And then I felt this emotion, like I felt like sharing it with him कि पापा देखो मैं नया जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। And but then I feel I've become a man now, and ये बात अपने आप को समझानी पड़ती है कि मैं एक बड़ा इंसान हूँ अभी इस समाज की नज़र में। दिल से शायद मैं अभी भी अपने पापा का बेटा हूँ, अपनी मम्मी का बेटा हूँ, बट अभी भी मुझे लगता है कि मैं कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, मैं तो सेम ही हूँ जो बचपन में था। बट दिस वर्ल्ड, दिस सोसाइटी सीज मी डिफरेंटली नाउ। एंड सो देन आई केम बैक होम एंड स्पोक टू माई मदर, फेल्ट लिटिल इमोशनल, and then I was like amazed that how anything can make us feel, and anything can lead us to certain memories and to certain people. कभी एक बार तो ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी की सारी जो मेमोरीज़ है ना, अगर उस पर थोड़ा सा ध्यान दूंगा ना, वो घूम फिर के मेरे पापा तक ही पहुँचेगी। हर चीज़ की शुरुआत, चाहे वो बाइक चलानी हो पहली बार, गाड़ी चलानी हो, जिम जाना हो, अच्छा कोई नॉन वेज की कोई डिश जो मुझे पसंद है, जो मैं बहुत खाता हूँ, वो खाना हो। मेरा ह्यूमर भी मेरे पापा के जैसा ही है, हमारे जोक्स भी, हम सेम टाइप की बातों पे हंसते हैं। एंड मेरे पापा और मुझे दोनों को फ़ैशन, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था, है। जूते अच्छे, स्टाइल, दौर अलग है बट चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं। एंड सो ये जब चीज़ मेरे मन में हुई तो मैं पता नहीं, मैंने 10,000 इमोशन महसूस कर लिए। मैं इंस्पायर्ड था नया जिम ज्वाइन करने के लिए, एक्साइटेड था, ओवरवेल्म था, इमोशनल हो गया बाद में। एंड आई फील ये चीज़ चलती रहती है। आई थिंक ये शायद मेरा ज़िंदगी भर के लिए कंपेनियन रहेगी, ये फीलिंग। एंड क्योंकि ये बात मैं कभी जता नहीं पाऊँगा कि मुझे कैसा महसूस होता है। मुझे कभी शब्द बने नहीं हैं शायद या इन बातों को बताने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ अधूरी सी महसूस होती है कभी कभार, एंड तभी मैं ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ। एंड क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक और डीप चीज़ है इन अ वे दैट कितना भी सोच लो इसके बारे में, हमारा दिमाग शायद फ़ायदम नहीं कर पाएगा, इन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। दैट्स वाई गॉड, फेथ and meditation and understanding life on a profound level from heart comes into the picture, and that's why it's so important, and उसके बिना तो हम काबिलियत ही नहीं रखते इन बातों को समझने के लिए, वरना तो हम ख़त्म ही हो जाएंगे भाई। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि कैसे लोग मूव ऑन हो जाते हैं कुछ चीज़ों से। पता नहीं यार, वो बहुत महान लोग होंगे, आई डोंट नो, या फिर मैं रिलेट नहीं कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा के जाने से पहले मुझे लगता था कि मेरे पापा जहाँ भी हैं वो इस धरती पे ही हैं, मैं जाके फ़्लाइट पकड़ के कैसे भी उनसे मिल सकता हूँ। बट अब ऐसा लगता है कि मेरे पापा एक ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर मैं नहीं हूँ, मैं उनसे दूर हूँ, अलग हूँ। कभी कभार रात को साइकिल चला रहा होता हूँ, लाइक दिस वीक ओनली आई वॉज कमिंग बैक फ्रॉम अ मैच, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल इन जुहू, सो आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन माई साइकिल। सो साइकिल चलाते हुए मुझे बड़ा मज़ा आता है, काफ़ी मेडिटेटिव मैं हो जाता हूँ। सो मैं साइकिल चलाते हुए जा रहा था एंड वापस आ रहा था तो मुझे एहसास हुआ एम्प्टी रोड पे कि भाई मैं अकेला हूँ, अकेला साइकिल चला रहा हूँ, पापा नहीं है मेरे अभी। और आई कांट एक्सप्लेन एक्चुअली दिस फीलिंग, लाइक मैं साइकिल चलाते हुए सोचने लग गया कि पापा नहीं है अभी और मैं अकेला जीता जा रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, एंड लाइफ इज़ हैपनिंग। एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीलिंग दैट आई कांट पुट एक्सप्लेन, एंड मुझे ना अपने पापा को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना बहुत पसंद था। मेरे पापा और मेरे बीच में ना ऑलमोस्ट हम सेम चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते थे। मेरे पापा हमेशा मुझसे पूछते थे तेरे आपका वेट अभी कितना है, खुद का मतलब बॉडी का मेरा वेट कितना है, पूछते थे बेंच प्रेस कितना मारा लास्ट टाइम,
एंड कभी कभी कुछ दिन जिम नहीं गया, तबीयत ख़राब हो गई, कुछ ऐसा हो गया या डिस्ट्रैक्टेड हो लाइफ में, पापा इमीडिएटली फीडबैक दे देते, कहते थे युवराज कमज़ोर लग रहे हो आजकल। एंड और वैसे तो मैं ऊपर वाले की दुआ से ज़्यादातर फिट ही रहा हूँ। एंड माई डैड वुड लुक एट मी फ्रॉम अ डिस्टेंस। कभी वो गाड़ी पार्क करके आ रहे थे तो जानबूझ के दूर रुक जाते थे, क्योंकि मैं दूर से आ रहा था तो मुझे पता नहीं था कि पापा वहाँ पे मुझे देख रहे हैं। वो जानबूझ के छुप के मुझे देखते रहते थे दूर से। एंड कभी कभार मैं उनको स्पॉट कर लेता था तो मेरे पापा दूर से स्माइल कर रहे थे ऑलरेडी। एंड ये बात मैं कभी भूलूंगा नहीं। एंड आई थिंक मेरा शायद प्राइमरी पर्पस पॉडकास्ट करने का यही है कि मैं अपनी मन की बातें दिल खुल कर शेयर कर सकूं और कुछ शेयर कर सकूं सबसे, ताकि ये एक शेयरिंग की स्पेस बने। एंड हम्बली मैं कुछ ऑफ़र कर पाऊँ। माय दिस कैमरा इज शट नाउ, बैटरी हैज़ डाइड। Hi, so yeah, we're resuming now. And so yeah, and where was I? पूरा का पूरा फ्लो मेरी बातों का थोड़ा सा डगमगा गया, बट bear with me guys. So yeah, I was just sharing, that I feel fundamentally everything is connected to my father. And I feel my whoever I am, whatever I do, it's just whatever I've learned in life, it has majorly come from my father. And so I felt like I should share about this experience, that I felt a couple of days ago. Like मुझे लगता है कि मेरे इस पॉडकास्ट का फंडामेंटल पर्पस यही है कि मैं अपने जीवन से कुछ बातें शेयर कर सकूं जो मैंने जी हैं, छोटे से मेरा जो जीवन है अभी तक का, और मैं हम्बली वो शेयर करना चाहता हूं। और कहीं कभी किसी को लगे कि वो कुछ बात अपने मन की मुझसे कहना चाहे, या फिर किसी को लगे कि वो रिलेट कर पाया एंड किसी तक वो बात पहुंची, एंड किसी को लगा कि वो इंसान अकेला ही नहीं है इन चीज़ों को महसूस करने में, तो आई थिंक मेरे इस पॉडकास्ट का पर्पस वहीं पर ही फुलफ़िल होता है। एंड मैं यहाँ पर कुछ ख़ास सिखाने, कुछ बताने नहीं आया हूँ। मैं हम्बली अपनी एक जर्नी शेयर करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस चल रहा है मेरा, एंड सुपर ग्रेटफुल एंड सुपर हैप्पी फॉर दैट। एंड मुझे दिख रहा है चीज़ें किस तरह मटीरियलाइज़ हो रही हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, एंड बहुत सारे लोग मुझे ओपन अप होकर कभी कभार कोई ईमेल भी कर देता है, कभी कभार कोई यूट्यूब की वीडियो देख के मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देता है, कभी कभार कोई बंदा कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लिख देता है। एंड मैं सब पढ़ता हूँ, सब कुछ, सबकी बातें मुझ तक पहुँचती हैं। एंड आई एम super grateful and super fortunate, that I'm able to do this. And so yeah, this happened this week, and I'm looking forward to join this gym very soon. And आज मेरा ट्रायल था लेकिन मैं गया नहीं सुबह, आज मैं जिम नहीं गया, मैंने ब्रेक लिया। आज थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी सुबह, एंड ओवर ट्रेन महसूस कर रहा था बेसिकली, बिकॉज आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। सो या तो फुटबॉल कम करूँगा थोड़ा सा, एंड ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। क्योंकि since I've been training since the time I was 14 to remain consistent, it's very crucial and very important to keep on to keep going back to the basics, and to not have to not hit PRs, or to not expect superhuman performances by us on a day-to-day basis, because that's unreal. And like performing on the highest level continuously for days is a perfect recipe to burn out. You can burn out with that. So you have to be realistic, and you need to think in terms of like what is the right way to go about to keep this thing, whatever the training, for the long term. It's a lifelong kind of a commitment. It's not some sort of a phase.
कि lot of people say no कि my summer body, oh I'm in a I'm transforming my body, or I'm in a transforming phase. The fitness and training and your well-being is not a phase, it's your commitment to yourself till you're alive. So you need to think in those terms. You can't be reckless, you can't push yourself extra, you can't operate from the energy of aggression and ignorance. You have to be wise, you have to be gentle, you have to move with love and compassion. You have to be your best friend when you move. You can't be your enemy, and you can't punish yourself in the gym or anywhere else, because that will manifest in the form of a nasty injury, and that injury will lead to disappointment, and it will discourage you in the long run, because the gap that will follow after that injury, that will deplete your determination, that will deflate you and your goal, whatever your mission. So you need to be really very wise, and be a wise person in all spheres of life, and training in the gym for me is the best you can say simulation. It's like a simulation of life, how you navigate yourself and how you take care of yourself in life. You can learn a lot of things about like general life matters from what you do in the gym, your self-discipline. Are you being one of those people who sit in a corner and daydream, or are you being one of those people who pick up their phone between sets and distract themselves? Are you somebody who engage in small talks in between sets, or are you somebody who is lifting with a purpose, and who is also taking a break in between with purpose, who is sipping the water with purpose, who is doing everything with purpose in the gym, and not getting by? It's a very profound thing, and so yeah, this happened, and coming back to my gym experience, and I felt that I felt like I reached back home, and I shared this thing with my mother, that because I play football a lot, and I also train almost every day, and there are days in between where I was not feeling inspired to hit my macros. I was just getting by, and one day I was just climbing the stairs of my building, and I felt a little weak in my on my knees, and that took me back to this memory of I saw my father on his a few days before he passed away. He was like a skeleton. He had become like a skeleton, so weak, so frail. I remember he was trying to करवट लेने की कोशिश कर रहे थे वो, एंड करवट लेते लेते उन्होंने अपने दांत ऐसे क्लेंच किए थे उस लाइक दर्द में, एंड ही वो जस्ट taking the support of the bed, and just he took like 15 minutes to just take a small turn, and his entire body was aching and paining because there was nothing left in the body. He could not eat, and he was just waking up and sipping a water and then passing. He had become a skeleton. I remember I used to help him to sometimes get up and drink water or some medicine. मेरे को डर लगता था कि पापा को चोट ना लग जाए मेरे हाथ से या उनको उठाने में, बिकॉज ही हैड बिकम सो फ्रेजाइल, सो वीक. तो मैं हर बार अपने इमोशंस कंट्रोल करता था. एक बार की बात है, मेरे पापा ने मुझे बोला कि मेरा नाम मुन्ना है, प्यार से मुन्ना बोलते हैं मुझे. तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि मैं अंदर घुस रहा था, पापा ने आवाज़ दी थी, एंड उन्होंने एक्चुअली जो हेल्प करते हैं उस लड़के को बुलाया था, बट मैं पास था तो मैं भाग कर पहुँच गया. मैं जैसे ही भाग कर मैंने पर्दा खोला, मैंने घुसा, तो मेरे पापा ने मुझे दूर से बोला, मुन्ना मुन्ना बेटा, मैंने कुछ पहना नहीं है नीचे. एंड व्हेन ही सेड दैट, he was like so sick, almost unconscious, but still he cared so much about me. And I'm like, I came close to him, like, पापा कोई बात नहीं, मैं ही हूँ. And I started crying, and I had to bite my lip so hard कि मैं ज़्यादा दूर से ना रहूँ, and पापा को इतना ना दिखाई दे. And I helped, he's like, आप मेरी हेल्प कर दोगे बेटा. एंड मुझे पापा की हेल्प करनी थी. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, एक
हॉस्पिटल से मिलता है, और वो एक वाइट कलर की बॉटल जैसी होती है पेशेंट्स के लिए, उनको अ, उनको पी कराने में हेल्प करती है वो चीज़। एंड वो मुझे उन पापा को देनी थी। एंड आई जस्ट could not see my beautiful amazing father like that, and I can't explain how this feels, everything. Like, if you ask me, I'm only living for my mission and for my purpose. And every breath I want to live a greatest life, because I'm responsible for my father's legacy, for my father. I love him so much that I don't even cry that much, because I genuinely feel it, I know it, that bodies die, but I feel the energy, it just goes back into this beautiful unfathomable ocean of existence, to this universe. So I deeply feel that ki whatever wherever, however, wherever, in whichever form my dad's energy is, जिस तरह मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे को तकलीफ़ में कोई मेरे मम्मी पापा या मेरे भाई बहन देखें, मेरी बहन देखे, इस तरह डेफिनेटली मेरे पापा भी कभी नहीं चाहेंगे कि मैं भी तकलीफ़ में रहूँ। तो इसलिए मैं जानबूझ के रोता नहीं हूँ। एंड ऐसा नहीं कि मैं कंट्रोल करता हूँ अपने आंसुओं को, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही गहरी बात है ये। मुझे कभी भी चोट भी लगी है ना लाइफ में, मैं खुद शायद झेल सकता हूँ चीज़ों को, चोटों को, बट मैं हमेशा घर पे अपनी मम्मी को नहीं दिखाता। मैं दिखाना नहीं चाहता अपनी चोट, या फिर मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा मेरी मम्मी या मेरे घर वाले कभी भी मुझे किसी भी तकलीफ़ में देखें, क्योंकि उनका दिल टूट जाएगा। वो दुख तो मैं तो अकेला दुख झेल लूँगा, बट मैं अपनी मम्मी को वो दुख नहीं देना चाहता बिल्कुल भी। एंड ऑफ कोर्स अपने पापा को भी नहीं देना चाहता। नाउ आई फील मेरे पापा को कितना दुख लग रहा होगा कि मैं उनको उस कंडीशन में देख पा रहा हूँ, और क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है, वो हेल्प, ही वॉज, he could not even move. So it was a heartbreaking situation for my entire family, and like a nightmare, you can say, literally a nightmare. But God has a beautiful way of teaching us one of the life's most profound lessons, that everything is temporary, and everything is destined to change. Everything is destined to dissolve and to transform into something that we can't even make. Sometimes we can't even make sense out of it. And what our society and this world teaches us, like our life is built around attachments, and we are that everybody encourage us and they teach us how to hold on to things, how to protect things, how to gather and accumulate more of things, how to work hard to build the fake identity. Like, my identity is not Yuvraj, it's just a label and some sort of a ID card which was given to me. Nobody encourages us in this education system to seek the true meaning of this life. Like, why are we born? Who is this? Who are we as human beings? What is our fundamental purpose? And why does this life, this humanity, this species exist? What is the fundamental purpose of us as a human being? And then we all can learn about whatever are the roles we are supposed to play in our careers, in our families, in our communities, in the society. But I think fundamentally the main teaching should revolve around this existence, that why are we born fundamentally, and what is the real meaning of this life. We are born alone because we breathe alone. Yes, we come through our parents, but even our parents are children of that one big almighty, that existence, the God, whatever you call it, life force, source, and the universe. Then this progression of things keep happening, but we need to really understand and truly, this should be a part of our education. And then we can learn economics and everything that can be secondary. I'm not against that. That's a beautiful thing as well. But because nobody teaches us that key, whatever, like, our entire life revolves around certain people and certain things. But the truth is, fundamentally, everything is destined to be dissolved, and it will be taken away in one form or the other.
aging will happen, then sickness will happen, and nobody is ready to face or to feel that. Starting ke 30-40 years, they just go by in some sort of a euphoria, some sort of a dream, and most people feel that uh, they know about death. They don't even talk about it. They look at it as a sad topic, about which is it's not, and they dodge it. But the truth is, it is the reality of life. It is life ka different side. Life and death are like a different side of the same coin, and to not understand death is a highly delusional way of living. And so yeah, that's what I'm saying. God has a very beautiful and very unconventionally beautiful way of teaching us and making us see the glimpse of what death is all about. And fundamentally, life and death, they both are the same. And so that's what I'm trying to say, that our entire ideas of us, whatever we do in our life, our every action, it is directed towards accumulating and gathering and building something which is not even true, some sort of a fake identity, which is destined to be dissolved, to be taken away. It will be seeing the evaporation and dissolution of everything that one has gathered. I had seen this beautiful small video somewhere where somebody was talking about ki 100 years from now, our relative, our own bloodline up ahead, our own relatives won't even know us. That, like, we don't know our forefathers. Barely anyone knows their name. Similarly, even we will be gone. Everything will be gone, and someone else, some other family only will be living in our own in our houses that we have worked so hard for. And even my own grandchildren, they won't even know me, who I am and who I was. And such is the true meaning of life. And yet we waste our days, our time, our precious, priceless moments in chasing mundane, meaningless things, uh, expecting to be some sort of a big shot in this dream-like society. It is not even it is just a joke. It's like devil runs this society, and it wants you to waste your precious life in chasing some sort of a mirage. You won't ever make it. By the time you realize, you get this much of wisdom, you will be 70 or 80 year old, and then you will be roaming around in mandir and in some joggers park, taking long walks and thinking ki, "Oh, my life is so meaningless. Whatever I did, what for what? Nothing makes sense." Because whatever that energy that runs the society, in Hinduism we call it Maya, and in Buddhism it's referred as devil of the sixth heaven. उसका काम ही है कि वो मैनिपुलेट करे और लोगों को उलझा के रखे इन चीज़ों में, ताकि अगर लोग सच के करीब आ गए, अगर एनलाइटेंड हो गए, तो वो इस जीवन को डिवोट कर देंगे सच को ढूंढने के लिए, और खुश होकर जिएंगे, खुशी मिल जाएगी उनको, कंटेंट हो जाएंगे, और ये दुनिया अच्छी जगह बनने शुरू हो जाएगी। वो नहीं चाहता है, तो इसलिए वो लोगों को इस जंजाल में रखता है, लाइक जिसमें लोगों का सेल्फ वर्थ नहीं होता, वो अपने सेल्फ वर्थ चीज़ों में ढूंढते रहते हैं, रिस्पेक्ट चीज़ों में ढूंढते रहते हैं, नाम और शोहरत में ढूंढते रहते हैं, जिनकी कोई मायने ही नहीं है। वो उसमें अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, जिनको चेज़ करने कोई पॉइंट ही नहीं है। मतलब 2 पल का नाम है, मैं 10,000 लोगों के नाम ले दूंगा जो अपने आप को तुर्रम खान मानते होंगे अपने टाइम पर। आज वो कहाँ हैं? आधे लोग तो दुनिया में है भी नहीं है, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। मेरे पापा बड़ी अच्छी बात कहते थे, चढ़ते सूरज को सलाम है। मतलब कि जो चीज़ चढ़ रही है उसके लिए वाहवाही होती है, बट किसी को ये पता नहीं है कि हर चढ़ान के बाद में ढलान भी आती है। जब डिक्लाइन आता है ना, तो मैक्सिमम लोग वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है चढ़ान को देखने की, और चढ़ान के बिना वो अपने आप को कुछ नहीं मानते। दे फील दे आर नथिंग, एंड देन दे सीक द की मीनिंग ऑफ लाइफ, कि भाई ये सब क्या ही किया, क्यों भागा उतना मैं उसके पीछे, अपने प्रेशियस ईयर्स मैंने उसके पीछे लगा दिए। नो, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई रिपीट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट that is not the main thing. It's a very small sort of a side quest, you can say. The main quest is to understand this being, you know. I don't even know what will be the
one topic of this podcast. As usual, I just showed up with an open heart to share something with each one of you. एंड एक कैमरा भी मेरा बंद हो गया था, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है, शायद चार्ज नहीं किया था मैंने उसको, बट दूसरा वाला चल रहा है. सो या आई थिंक I just wanted to share this thing with each one of you. And once we realize who we truly are, then we can truly be happy. None of this matters. It's just a joke, man. We should not take it so seriously. We should truly devote our every second, every moment, like our ashes on fire, to understand this thing, this powerful being. बहुत ही अच्छी कहानी है इन बुद्धिज़्म कि एक गरीब इंसान अपने एक अच्छे दोस्त से मिलने आता है, एंड वो बहुत अच्छा दोस्त उसको अच्छा ट्रीट करता है और उसको अच्छा खाना वाना खिलाता है. गरीब इंसान खाना खा के पेट भर के सो जाता है लेकिन जब वो सो रहा होता है ना, उसका जो अमीर जो उसका दोस्त होता है, जिसके घर पे वो आया होता है मिलने, उसका अच्छा जो अमीर दोस्त होता है ना, वो उसके एक जो उसका कोट होता है, उसके कोट के अंदर ना एक बहुत ही प्रेशियस जूल को, प्राइसलेस प्रेशियस जूल को ना उसके अंदर वो सिल लेता है और अंदर रख देता है. एंड सुबह उठ के वो गरीब इंसान चले जाता है अपना कोट वोट पहन के जो भी, और बरसों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं. एंड फिर दोबारा वो गरीब इंसान अपने अमीर अच्छे दोस्त से टकराता है. तो अमीर अच्छा दोस्त बोलता है, अबे यार तू तो अभी भी इसी गरीबी में क्यों जी रहा है. तो उसने बोला, भाई मैं तो गरीबी था स्टार्टिंग से. तो वो अच्छा बोलता है, अरे भाई मैंने तेरे सूट के अंदर ही मैंने ये प्रेशियस जूल को अंदर सिल दिया था, एंड तूने उसको देखा भी नहीं, अंदर झाँक के भी नहीं देखा, ढूंढा भी नहीं. इसका मीनिंग ये है कि जो ऑलमाइटी जो ग्रेट है, हम द क्रिएटर ने ऑलरेडी वो प्रेशियस जूल हमारे अंदर दे दिया है, हमारे पास ही है वो. उसको हमारी इग्नोरेंस है कि हम उसको पहचानते नहीं, उसको ढूंढते नहीं हैं, उसको हम जानना भी नहीं चाहते कि वो हमारे पास है. इसलिए हम यहाँ वहाँ देखते रहते हैं कि जो बाहर वालों के पास में कुछ होगा हमें देने के लिए. हम खुद की सच्चाई जानना नहीं चाहते कि हम हमारे पास ऑलरेडी वो मोस्ट प्रेशियस पावरफुल जूल हमको दिया हुआ है. दैट ब्यूटीफुल वट एवर दैट डायमंड वट एवर दैट थिंग इज़, वो ऑलरेडी हमारे पास में है. एक और बड़ा अच्छी सी कहावत है वो एक कस्तूरी हिरन, कौन सा हिरन है वो, एक हिरन होता है वो कस्तूरी की खुशबू ढूंढता रहता है और दीवाना होकर जंगलों में भागता रहता है पागलों की तरह. उसे पता नहीं उसकी नाभि में है वो खुशबू जिसे वो ढूंढ रहा है. सो ये सारी चीज़ें हम ढूंढते हैं, एक अच्छा रिश्ता, दूसरों की तारीफ़ करते हैं, अरे विराट कोहली ने इतनी सेंचुरी मार दी, अरे भाई वो तो ज़िंदगी जीत गया भाई, इतने करोड़ों का मालिक है वो, पापाराजी ढूंढ रहे हैं उसको. अरे भाई लेकिन वो भी बंदा नॉर्मल है, उसके अलग ही स्टेप पे चल रहे होंगे लाइफ में. ये सब चीज़ें होती हैं, इनका होने में कोई गुनाह नहीं है. बट ये देखकर ये मत को सोचो कि भाई फ़लाना इंसान के पास में अगर ये चीज़ें तो उसने ज़िंदगी जीत ली. सबकी तकलीफ़ें वहीं की वहीं हैं और वहीं रहेंगी. सबकी उम्र बढ़ेगी, सबकी बीमारियां भी होंगी, सबके बच्चे बड़े होंगे, सबकी बीवियों से सबकी तकलीफ़ें भी होंगी, सबको दुख भी होगा, सबके माता पिता भी जाएंगे तो उनको भी डिप्रेशन तकलीफ़ें आती होंगी, एंग्जाइटी आती होगी. पैसा अगर चीज़ों का जवाब होता तो इस दुनिया में उदासी नाम की चीज़ नहीं होती. पैसा होना चाहिए अपनों का ख्याल रखने के लिए. अगर बाहर तूफ़ान चल रहा है तो पैसे से हम एक छत अपने सर पर ला सकते हैं, बट पैसा एंड गोल नहीं है. पैसा इज़ जस्ट वन ऑफ द टूल्स यू कैन से. सो हम जब बाहर के लोगों की इतनी तारीफ़ें करते हैं, दिन रात भर अपनी आंखें फूंक देते हैं रील्स चेक करते हुए, या लोगों की लाइफ चेक करते हुए, अरे ये फ़लाना इंसान की शादी हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है, इंसान क्या कर रहा है. क्योंकि कहीं ना कहीं हमें खुद की सेल्फ वर्थ का एहसास नहीं है, हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते. हमको अपने खुद के अंदर का वो जूल, वो किंगडम का एहसास नहीं है कि वी आर द किंग, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ. हम पड़ोसी के घर में झाँकते रहते हैं क्योंकि हमें खुद के घर के बारे में पता नहीं है कि हमारे घर में वो सब कुछ है जो किसी और के घर में भी होगा, या जो हम ढूंढते रहते हैं बाकियों के घरों में. बट उसकी अवेयरनेस के लिए हमें खुद के अंदर झाँकना पड़ेगा. झाँकने के लिए हमें ईश्वर के सामने या फिर किसी फेथ या किसी प्रैक्टिस के सामने सर झुकाना पड़ेगा, यूनिवर्स के सामने सर झुकाना पड़ेगा, और मेडिटेट करके आंखें बंद करनी पड़ेंगी अपने आप को. जो भी तरीका होगा, अंदर झाँकना बहुत ज़रूरी है, वरना तो हम भटक जाएंगे यार. चेज़ करते रहेंगे पागलों की तरह बड़े बड़े एक्टरों की गाड़ियाँ, क्योंकि हमें लगता है कि अरे उनके पास वो जीवन है जो भाई बड़ा रेयर किसी को मिलता है. ये बहुत ही बड़ी आडंबर है, बहुत ही बड़ी कॉमेडी है दुनिया की. कुछ भी नहीं है उनके पास में ऐसा. इनफैक्ट वो उनसे बड़ा फ्लॉड, दे आर उनसे बड़ा फ्लॉड
जैसे वो लोग हैं उनसे बड़े फ्लॉड लोग और कहीं भी नहीं है। जो सामाजिक सोसाइटी में लोग रहते हैं ना, काफ़ी सिंपल लोग होते हैं। जितने ज़्यादा बड़े लोग सो कॉल्ड दिखते हैं, उनकी तकलीफ़ें और बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। डेफिनेटली देर आर एक्सेप्शन इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर। आई एम नॉट ट्राइंग टू say that they are bad people. They are amazing good people. There's so much to learn from them. They are beautiful, they're amazing. That's not the point. And my camera has died, so guys, I'll have to shut it and I'll have to लंबा पॉडकास्ट बन गया ये. And on this note I'll be saying goodbye. My voice only can be heard क्योंकि दोनों कैमरे बंद हैं. Thank you so much guys. Love and peace to each one of you. Bye.